Okay, good morning. Chalo, let's start. So I'll just move on to the book first of all, then we'll share up what all things are required. Just a sec. Okay. And this new book published by CBSE, uh, almost the things are same, but just few things are extra. So we'll discuss those. Okay. Why DBMS is used, what is DBMS, database management system software, this we have done, and what are the different popular DBMS softwares are, the types we have already discussed. Then it allows us to store data, query the database, then we can sort and manipulate the data, validate the data, and we can create reports on the screens. So ये तो वही है common relational databases are the databases where we create tables, right? We store data in the form of tables, and like this. Benefits are all same: data shared, security, redundancy, inconsistency. This you all have covered up in your exams also. Tables क्या है, relations क्या है, columns क्या है, rows क्या है, this we have covered. A record is also called as a row, or it is also called as a tuple. A field is also called as a column, and it is also called as an attribute, right? Keys may we have done primary key. This we know that primary key is a column which have always unique values, and there's no null value entered into that particular column. यूनिक होगा और नल नहीं आएगा. कैंडिडेट कीज वो कॉलम्स हैं दैट कैन बी प्राइमरी की, विच कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की. such columns are candidates, and then out of those candidate key one can be primary, the other one left, or the other whatever columns are left, they are called as alternate keys, right? Like in this table, admission number हम primary बना सकते हैं, roll number can also be made primary keys, but both these are your candidate keys, and if you make admission number as primary, then roll number will be your alternate key, right? Foreign key concept is used when we want to link up two tables. Why, if I want some values from one table and some values from another table, then we use foreign key. Foreign key का concept हमने किया था, uh, and we'll do that practically also in the coming sessions and lessons. This detail was not there in the previous book. Characteristics of MySQL language. What are important things related to MySQL? So एक तो MySQL is an open source licensed software which is available on internet. Moreover, it is free to download. There is no cost. There is no payment, right? So open source भी है और free भी है. Open source मतलब you can download the software and then you can modify the software as per your needs, right? It has a good speed, easy to use, and reliable software. It follows NC SQL standard. NC is the common standard which is used by most of the languages. So ये एक ऐसा standard form है जो ज़्यादातर languages use करती हैं, right? So in other words, we can say it is easy for us to use, easy for a user to use it. Then it is platform independent. This point is very important because ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि why SQL is platform independent, why MySQL is platform independent. This, why it is independent, because it totally it is based on binary form of data which can be accessed on any kind of platform. ठीक है, तो ये बाइनरी फॉर्मेट में बनी होती है, इसलिए सारे फॉर्म प्लेटफॉर्म्स पे चलती है. And moreover, it is compatible with other languages also, like Java, C++, PHP, Perl. ये बाकी languages के साथ link करके भी use की जा सकती है, right? In 12th class we'll cover up how we can create a project kind of thing by using two languages and linking two languages. We'll learn Java there. हम हमारे syllabus में भी Java का introduction है. So Java और SQL को आपस में relate करके हम एक software बना सकते हैं, राइट? सो जावा में हम सॉफ्टवेयर का फ्रंट
एंड डिज़ाइन करते हैं और MySQL में हम उसका डेटा स्टोर करते हैं, बट इन दोनों को आपस में लिंक किया जा सकता है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो MySQL इज ऑल्सो यूज्ड इन कंपैटिबिलिटी विद मेनी अदर लैंग्वेजेस. जावा हो गया, C++ हो गया, PHP है, पर्ल है, likewise, right? Then it is easy to install and it can handle large amount of data sets, right? Then यहाँ पे downloading links भी available हैं. If you want to download MySQL software, you can go download from this link. Then the steps to download are also given. You can just go through this. This is the introduction why MySQL is important, right? Then go to this MySQL community from where you can download the things. As you can see here, यहाँ से आपको विंडो का वर्जन ढूंढना है. या आपको दो फाइल्स मिलेंगी, एक जिप होगी और एक without zip. This will be with all the software. This is only particularly MySQL. So you can just click on any of these two. So we'll download. The files will be downloaded, right? And click on run button once it is downloaded. Download होने के बाद उस आइकन एक डाउनलोड होगा, उसको डबल क्लिक करो, रन बटन पे क्लिक करो, तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा. और इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद आपको इनफैक्ट व्हेन यू इंस्टॉल MySQL इट इज़ इंस्टॉल्ड इन 2 स्टेजेस. पहले एक बार इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद एक दूसरी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी. उसमें आपको पासवर्ड सेट करना होता है. दैट इज़ बेसिकली कन्फिगरिंग योर सॉफ्टवेयर. उसमें आपको पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा. एक स्टेज आएगी जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है. यू जस्ट हैव टू क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको एक पासवर्ड देना है. दैट इज़ दी लॉगिन पासवर्ड फॉर SQL. वो पासवर्ड हर बार जब भी आप MySQL ओपन करोगे आप उस पासवर्ड से ओपन कर सकते हो, राइट? सो द पासवर्ड यू मस्ट रिमेंबर, राइट? Talking about various categories of commands, this we have 2 types of command. In fact we have other types also, but हमारे करिकुलम में 2 ही हैं. एक DDL कमांड है, एक DML कमांड है. DDL क्या था? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो टेबल्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है या कॉलम्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है. So these DDL commands are basically designed for creating column, modifying column, deleting columns, creating tables, modifying tables, deleting tables. So ये deal करती है tables के साथ और columns के साथ. और DML, that is data manipulation language commands, they deal with the data present inside the table. मतलब ये rows के साथ work करती है. It updates, adds, deletes the data present inside the row. राइट? ये मेन डिफरेंस है. इनमें कौन कौन सी कमांड्स आती हैं, नाम आपको पता होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज DDL कमांड, गिव 2 एग्जांपल्स. सो देन यू हैव टू राइट दीज कमांड्स आल्सो. क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ये सारे DDL कमांड्स हैं. सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू, दीज आर DML कमांड्स. Then data types में char, varchar, we know it, fixed length and variable length, decimal, integer, long, time, date, these are all same जो पुरानी बुक में है. ये डेटाबेस क्रिएट करने के सिंटेक्स हैं विद एग्जांपल्स. इसमें we have done all this. हाँ, ये मैंने यूनिक कंस्टेंट वैसे आप लोगों को बताया है, बट ये पुरानी बुक में आई थिंक मिसिंग है. तो यूनिक कंस्टेंट ये यूज़ होते हैं, कंस्टेंट्स हम यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल, जब नया टेबल क्रिएट करना है, ठीक है? तो एट दैट टाइम वी कैन अप्लाई सर्टन कंस्टेंट्स वैल्यू. कंस्टेंट्स आर सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट यू वांट टू अप्लाई. जैसे प्राइमरी की सेट करनी है या फॉरेन की करनी है या नॉट नल देना है. तो ये प्राइमरी की दे दिया, तो उस जिस कॉलम के आगे हमने प्राइमरी की लिखा वो कॉलम बन गया प्राइमरी. मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आएंगी, उसमें नल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है? और एक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए, राइट? सो नॉट नल कंस्टेंट हम जिस कॉलम के आगे लगाते हैं वो कॉलम में नल वैल्यू नहीं आ सकती. इट विल नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज. मीन्स यू हैव टू राइट समथिंग इन दैट कॉलम, यू कैन नॉट लीव इट ब्लैक. नल का मतलब होता है कि खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही पड़ेगा. फॉरेन की कंस्टेंट से हम लोग
एक कॉलम के अंदर दूसरे किसी टेबल के कॉलम्स की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, राइट। और जो फोर्थ वन है यूनिक कंस्टेंट, यूनिक में होता है कि व्हेन यू राइट यूनिक आफ्टर एनी नेम ऑफ द कॉलम इन दैट पर्टिकुलर कॉलम यू कैन नॉट राइट डुप्लीकेट काइंड ऑफ वैल्यूज। ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड यूनिक। प्राइमरी और यूनिक में क्या फ़र्क है। देखो प्राइमरी में भी डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती, यूनिक में भी नहीं होती। फिर दोनों में फ़र्क क्या है कि प्राइमरी कॉल की जो है वो एक टेबल के अंदर एक ही हो सकता है। यू कैन अप्लाई प्राइमरी की टू ओनली वन कॉलम इनसाइड अ टेबल एंड यूनिक कंस्टेंट्स कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल कॉलम्स। आपने मान लो 5 कॉलम्स का टेबल बनाया, 5 में से मैं चाहता हूँ 4 में यूनिक वैल्यू ही आनी चाहिए जी, तो मैं चारों के आगे यूनिक लिख सकता हूँ, बट प्राइमरी की सिर्फ एक कॉलम के आगे आएगा, राइट। दूसरी चीज़, प्राइमरी की में नल वैल्यूज़ नहीं आती हैं, यूनिक की में नल वैल्यूज़ आ सकती हैं, राइट। सो प्राइमरी की में नल नहीं आता, मतलब प्राइमरी की कॉलम जो भी सेट किया है उसमें यू हैव टू सेट वन वैल्यू, यू कैन नॉट लीव ब्लैंक देयर। ठीक है, मान लो सीरियल नंबर आपने प्राइमरी की कर दिया, राइट। तो सीरियल नंबर के अंदर you cannot skip any number, you have to write one number at least, but unique can have null, means in unique if any column is defined as unique then we can leave one value there, we can leave blank anywhere in between, right। ये क्रिएट टेबल कमांड का एक एग्जांपल है। यहीं पे हम प्राइमरी लिखते हैं, जैसे नेम, मान लो नेम को प्राइमरी करना है तो ये कॉमा से पहले प्राइमरी की लिख दो, अगर इसको यूनिक करना है कॉमा से पहले यूनिक लिख दो, राइट। नॉट नल करना है तो कॉमा से पहले नॉट नल लिख दो, नॉट और नल में स्पेस होना चाहिए। अच्छा, वन कॉमन थिंग दैट आई फाउंड इन एग्जाम्स दैट हम लोग जब ये कमांड्स लिखते हैं, जो बच्चे जनरली एरर्स मैं बता रहा हूँ, एरर्स क्या करते हैं हम लोग, जब भी ये कॉलम्स के नाम लिखते हैं इसमें हम बहुत गलतियाँ करते हैं। बिकॉज सी द क्वेश्चन में देख के आपको एग्जैक्टली वही नाम लिखना है विच इज रिटन इन द क्वेश्चन, राइट। इफ एन इज कैपिटल यू शुड राइट कैपिटल, इफ इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, और ऑब्वियस है कि दो वर्ड्स का अगर कोई कॉलम नेम है तो दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस कभी नहीं हो सकता, या तो दोनों वर्ड्स जुड़े होंगे या दोनों के अंदर अंडरस्कोर होगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब भी कॉलम नेम्स लिख रहे हो, टेबल्स का नाम लिख रहे हो, so you should write exactly as given in the question paper in the questions, right। और if you are creating your own table even then, जो भी नाम लिख रहे हो उसका नाम स्पेसिफिक रखो और वही नाम हर जगह पे यूज होना चाहिए। कैपिटल स्मॉल्स का ध्यान रखना है, स्पेसेस का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं बिकॉज अभी इनिशियली वी आर नॉट डूइंग इट, बट एट लेटर स्टेज द मार्क्स विल बी डिटेक्टेड। अभी मैंने हाफ ईयरली तक तो ये थोड़ा लाइटली किया है, बट आगे जितने एग्जाम्स होंगे उसमें मैं स्ट्रिक्टली चेक करूँगा। फाइन। Okay, so see here what they have done is that कोड को इन्होंने प्राइमरी की बनाया, कोड नाम का एक कॉलम है उसके आगे प्राइमरी की लगा दिया, तो कोड कॉलम जो है वो प्राइमरी की सेट हो गया, राइट। ओके, प्राइमरी की सेट करने के दो तरीके, एक तो है जब क्रिएट टेबल कमांड लिखना है, क्रिएट टेबल शूज कोड, उसका डेटा टाइप और साइज, फिर प्राइमरी की लिख दिया। सेकेंड वे इज अब सारा कुछ लिख लो, लास्ट में प्राइमरी की लिख के ब्रैकेट में कोड डाल दो। This is also one way. Both ways are right. So you can set primary key in both the ways. Right? Not null constraint में यहाँ देखिए create table choose, code is one column which is primary, name is another column, type is another column, size में लिखा है not null, so size column में null value नहीं आएगी, बाकी we can add.
right? This we have done. Show table, how to view the structure, describe टेबल का नाम, या DESC टेबल का नाम, दोनों में से कोई भी एक चीज़ चल सकती है। वन सेक, आई जस्ट स्विच ऑन द बैटरी, लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है। वन सेकेंड। So DESC or describe, both ways are right. So this shows the description of the table. This is the description, right? Name of the columns, their data types, whether they have null values or not, right? Default value is null. If primary is there, it is written PRI over here. अगर कहीं पे कोई फॉरेन की लगाई है तो FRI लिखा होगा। जैसे ये PRI इंडिकेट करता है कोड वाला जो है वो प्राइमरी है। साइज को हमने नॉट नल किया था, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। इसमें डिफॉल्ट 0 है और नल वैल्यू नहीं आ सकती, नो, राइट। प्राइमरी की में ऑटोमेटिकली नो हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी की जब लगाया है तो नल वैल्यू वैसे ही नहीं आ सकती। फाइन। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको स्ट्रक्चर टेबल का इजीली मिल जाता है। अल्टर टेबल, वी हैव आल्सो डन दिस। अल्टर टेबल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? वी कैन डू 3 things. One is 4 things basically. One is to add a constraint, कि मान लो आपने टेबल बना दिया, लेटर ऑन यू वांट टू सेट द प्राइमरी की। टेबल मैंने बनाया, उस टाइम पे मैंने प्राइमरी की नहीं लगाया, बट लेटर ऑन आई वांट दैट आई शुड सेट ए प्राइमरी की समवेयर इन द टेबल, तो तब हम अल्टर टेबल से कर सकते हैं, राइट। सो एक तो कंस्टेंट ऐड करने के लिए, दूसरा किसी कंस्टेंट को रिमूव करने के लिए। कोई भी कंस्टेंट, नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की, या यूनिक कंस्टेंट, कोई भी कंस्टेंट आपको रिमूव करना है, या रिमूव अ कॉलम इफ यू वांट टू डिलीट सम कॉलम, और वांट टू चेंज अ कॉलम। तो 4 चीज़ें हम लोग अल्टर टेबल में करते हैं। चारों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। लाइक इफ यू वांट टू ऐड अ कॉलम, सो विल सिंपली राइट अल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल, ऐड कीवर्ड लगाओ, और जो आपने ऐड करना है, कॉलम का नाम, डेटा टाइप और साइज, राइट। सेकेंड इज इफ यू वांट टू चेंज, तो ऐड की जगह पे मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद कॉलम का नाम, और कंस्टेंट जो आपने चेंज करना वो चेंज कर दो, राइट। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो ड्रॉप लिख के कॉलम का नाम लिख दो, राइट। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हीं का ही फर्क है। अल्टर टेबल स्टूडेंट तो सब में आ जाएगा। ऐड से नया कॉलम ऐड होगा, मॉडिफाई से कंस्टेंट चेंज हो जाएंगे, और ड्रॉप से कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऐड, मॉडिफाई, रिमूव अ कंस्ट्रेंट, कंस्टेंट रिमूव करना है, ऐड करना है, ऐड कीवर्ड से प्राइमरी की ऐड कर दिया, ड्रॉप की प्राइमरी की से प्राइमरी की डिलीट हो जाएगी, राइट। ये है यहाँ पे ऐड प्राइमरी की में नेम कॉमा साइज 2 लिए हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कई बार ऐसा होता है, किसी एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर वी डोंट फाइंड एनी सूटेबल प्राइमरी की, मुझे लगता नहीं कि कोई भी कॉलम सूटेबल है, डुप्लीकेसी होने के चांसेस हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम 2 कॉलम को एक साथ कम प्राइमरी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने का तरीका ये है, ऐड प्राइमरी की और दोनों कॉलम्स के नाम, ठीक है। दिस वी कैन ऑल्सो सेट। नाउ बोथ द कॉलम्स विल वर्क एज वन सिंगल कंपोजिट की। कंपोजिट या प्राइमरी की कह सकते हैं, कंपोजिट बोलते हैं इसको वैसे, और प्राइमरी की तरह काम करेंगे दोनों मिलके। अगर नाम की वैल्यू सेम कहीं आती है तो साइज डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स याद रखना है, एक ऐड, एक ड्रॉप, एक मॉडिफाई। ये 3 कीवर्ड्स हैं, मॉडिफाई, ड्रॉप और ऐड। ये तीनों हम अल्टर टेबल में यूज करते हैं। इफ यू वांट टू रिमूव द टेबल, यूज ड्रॉप टेबल, नेम ऑफ द टेबल। डीएमएल कमांड्स भी हमने ऑलमोस्ट की हैं। इंसर्ट इनटू से नई रो ऐड होती है। इसमें 2-3 वेरिएशंस हमने किए थे कि
This thing is very nicely written. Following point should be kept in mind while inserting a record. Numeric values must be entered as numerals. Numeric value नंबर वाली वैल्यू को नंबर्स फॉर्म में ही लिखना है, उनको हमने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है. स्ट्रिंग मस्ट बी इनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स. जितने स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, अल्फाबेट्स वाली वैल्यूज हैं, उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है. सिंगल में लिखो या डबल में लिखो, इट हैज टू बी रिटन. डेट शुड बी ऑलवेज बिन सिंगल कोट्स और डबल कोट. जितनी डेट लिख रहे हो, डेट अगर आपने कॉलम बनाया है तो इट शुड ऑल्सो बी रिटन इन सिंगल और डबल कोट्स. और दिस इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट. ये फॉर्मेट होना चाहिए. पहले ईयर 4 डिजिट का, फिर मंथ 2 डिजिट के, फिर डेज. ये दिस इज द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट, राइट. हमेशा इस फॉर्मेट में डेट होनी चाहिए. नल वैल्यू अगर डालनी है तो वहां पे नल लिखना है बिना इन्वर्टेड कॉमास के, अगर आपको नल लिखना है, राइट. नल मीन्स आपने अगर कोई ब्लैंक छोड़ना है, कोई कॉलम, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू, तो देयर यू हैव टू राइट नल विदाउट इन्वर्टेड कॉमास. नल को इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया तो गड़बड़ हो जानी है, ठीक है. नल शुड बी रिटन नल, कैपिटल्स और स्मॉल, बट इट शुड बी रिटन विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, राइट. सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल. कॉलम्स का नाम, दूसरा कॉलम का नाम, तीसरे का, चौथे का. अच्छा, ये सेकंड मेथड है. पहला मेथड ये था कि इंसर्ट इनटू लिखो, टेबल का नाम लिखो, columns. See, there are two ways of entering values. One is this and one is this. अगर हम ये लिखते हैं, पहले मैं ये बताता हूँ. insert into student values and then all the values based on the table structure. पहले कॉलम में 1 जाएगा, दूसरे में अभिषेक. ये आपको ध्यान रखने पड़ेगा. नंबर है तो इन्वर्टेड कॉमा छोड़ना है, ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा. ये भी, ये टेबल स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी एंट्री कर देनी है. बट इसमें ये है कि आपने अगर सिर्फ ये लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल्स और वैल्यूज, तो जितने कॉलम्स आपने क्रिएट किए हैं सबकी वैल्यू आनी चाहिए. अगर आपको कहीं कोई खाली छोड़ना है तो उस, जैसे ये खाली छोड़ना है तो इसकी जगह पे नल लिख दो बस, राइट. दिस इज द सिंपलर वे ऑफ एंटरिंग. अनदर वे इज कि अगर मान लो मेरे पास जैसे यहाँ पे 6 कॉलम्स है, ठीक है. आई वॉन्ट टू एंटर वैल्यूज इनटू ओनली 4 कॉलम्स, नॉट 6. बाकी 2 मुझे नल छोड़ने हैं. एक तरीका तो यह है कि ये एंट्रीज करो और जहाँ खाली छोड़ना है, जैसे मान लो लास्ट वाला खाली छोड़ना है तो इसकी जगह पे 98 की जगह पे नल लिख दो, राइट. और दूसरा तरीका ये है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर जिन जिन कॉलम्स में जिस ऑर्डर में एंट्री करनी है वो वाले कॉलम्स उठा लेने हैं. रोल नंबर में चाहिए, जेंडर में चाहिए, एल नेम में चाहिए, एफ नेम में चाहिए, बाकी नहीं चाहिए. सो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो, वैल्यूज लिख के फिर से ब्रैकेट में सारी वैल्यूज. रोल नंबर के नीचे क्या आएगा, 8. जेंडर में एफ, एल नेम में शानू, और एफ नेम में दीपाक्षी. So this will add up these 4 values under these 4 columns only, not other columns. अगर 6 columns है तो बाकी के 2 में ऑटोमेटिकली नल चला जाएगा, ठीक है. तो ये 2 तरीके से हम इंसर्ट इनटू कमांड को यूज करते हैं. सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने किया था, इसमें बहुत सारी वेरिएशन हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% आते हैं. जैसे इसमें एटलीस्ट 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से होता ही होता है. इसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट का काम क्या है, जो करंट टेबल है उसमें से इट पिक्स आउट सम वैल्यूज एंड देन क्रिएट अ टेम्परेरी काइंड ऑफ टेबल एंड शो इट टू अस, राइट. सो सेलेक्ट लिखने का तरीका, सेलेक्ट और जो आपने डेटा डिस्प्ले करना है वो कॉलम नेम्स ले लो और फ्रॉम लिख के टेबल का नाम लिखो. सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर वाले कॉलम्स की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे लाइक दिस, राइट. अगर आपको ज़्यादा कॉलम्स शो करने हैं, जैसे रोल नंबर, जेंडर, एफ नेम, तो रोल नंबर, जेंडर, एफ नेम विल बी डिस्प्लेड. ऑर्डरिंग कैन बी डन लाइक जेंडर आपको पहले चाहिए, एफ नेम पीछे चाहिए, तो जिस ऑर्डर में आप यहाँ कॉलम नेम लिखोगे उस ऑर्डर में आपका टेबल बनेगा. व्हेन यू राइट स्टार इट विल शो एवरीथिंग इन द टेबल, सारा टेबल डिस्प्ले होगा.
राइट। देन डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्टिंक्ट कीवर्ड से क्या होता है, रेपिटेशंस खत्म हो जाती हैं। जैसे ये मार्क्स कॉलम है, इसमें 84 दो बार है और मुझे एक ही बार शो करना है। तो जैसे इफ यू राइट सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट, so it will display everything including repetitions। और अगर हम डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो repetitions को वो हटा देगा, राइट। और ऑल कीवर्ड भी लगा सकते हैं, अगर हम डिस्टिंक्ट की जगह पे यहाँ ऑल लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तब भी सारी वैल्यूज आएंगी। और ऑल नहीं भी लिखेंगे तब भी सारी वैल्यू आती है। तो ऑल कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज। Where clause में we can put certain conditions like select f name marks from student where marks greater than 90। तो मार्क्स जहाँ 90 से ज़्यादा हैं वो वाले कॉलम्स के वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। दिस वी हैव ऑल डन। arithmetic operators, all mathematical operators, plus minus multiply divide and modulus is to find the remainder। हाँ, ये चीज़ आई थिंक हमने नहीं करी है। So we can straight away do calculations on MySQL platform like this. If you write select 7 star 10, 7 star 10 means 7 into 10. 7 into 10 is 70, so answer will be 70। Heading title ऊपर आपका यही होगा कमांड और नीचे आंसर। Select 788 star 9 minus 40। It will multiply 788 by 9 and then subtract 40 out of it. Answer is 7052. So that will be displayed, right। 23 मॉडुलस 4, 23 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बचता है 3, तो 3 विल बी डिस्प्ले। So likewise means you can do directly you can do this mathematical calculation directly, but that to be done with the select statement only। straight away नहीं होता, select लिख के उसके बाद आप जो भी एक्सप्रेशन डालोगे उसका कैलकुलेट करके वो ऑटोमेटिकली सिर्फ आंसर को डिस्प्ले कर देगा, राइट। दिस इज नॉट देयर इन द प्रीवियस बुक, ये थोड़ा ध्यान रखना, फाइन। Then updating certain values, this I think we have covered, like इसमें uh, select f name comma marks plus 10 from student where marks is greater than 90। so 90 से ज़्यादा वाले मार्क्स में दो कॉलम डिस्प्ले होंगे, एक f name और एक marks plus 10। प्लस 10 क्या करेगा, जो भी मार्क्स की वैल्यूज थी उसमें 10 10 जोड़ता जाएगा सारे कॉलम्स की वैल्यूज को, ठीक है। तो ये 98 था, ये 108 हो गया, ये 92 का 102 हो गया, ये 105 हो गया 95 से, 94 से 104 हो गया, 93 से 103 हो गया, 110 10 सब में प्लस कर दिए, राइट। यहाँ पे एक गलती ये है कि यहाँ पे जो हेडिंग है वो होगा मार्क्स प्लस 10, नॉट मार्क्स, ठीक है। यहाँ मार्क्स प्लस 10 शो होगा। हेडिंग हमेशा वो होता है जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम लिख रहे हैं, राइट। सिमिलरली हेयर सेलेक्ट EMP नेम कॉमा सैलरी प्लस सैलरी स्टार 0.1। तो ये क्या कर रहा है, सैलरी को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10% निकाला और सैलरी में ऐड कर दिया, तो सैलरी 10% इंक्रीज हो जाएगी। तो सैलरी कॉलम में जो वैल्यू है उसको वो उसका 10% कैलकुलेट करके, 10% कैसे निकालते हैं, 10/100 इंटू सैलरी, तो 0.1 इंटू सैलरी हो गया। तो इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द सैलरी कॉलम बाय 10%। So whatever is the answer that will be displayed as you see now। यहाँ पे कॉलम नेम क्या आया, जो यहाँ पे कमांड थी, ऐसे ऊपर भी यहाँ पे मार्क्स प्लस 10 आएगा, राइट। और कंडीशन पे डिपेंड करता है, पहले सबसे पहला काम हमें कंडीशन मैच करनी है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे लिखा है डेजिग्नेशन मैनेजर, तो डेजिग्नेशन कॉलम के अंदर जहाँ पे मैनेजर वर्ड है वो वाले रोज में से हमने एम्प्लॉय नेम उठाने हैं और उनकी सैलरीज का 10% इंक्रीज करके उस सैलरी में प्लस करके जो आंसर आएगा वो हमने शो करना है, राइट। देन टॉकिंग अबाउट रिलेशंस, रिलेशंस हमने कर लिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात ये है कि ये
नीचे वाले जो दो सिंबल्स हैं, नॉट इक्वल टू को आप इन दोनों तरीके से लिख सकते हो, एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन साइन एक साथ, राइट। सिटी इज इक्वल टू जयपुर, सो इट विल कंपेयर द वैल्यू इनसाइड सिटी कॉलम, जहाँ पे जयपुर है वहाँ के नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। वेयर ई सेल लेस देन 50,000, तो ई सेल कॉलम में जहाँ पे 50,000 से कम वैल्यू है वो उठेंगे। रिमेंबर व्हेन इट इज लेस देन, तो 50,000 इज नॉट काउंटेड। इफ इट इज लेस देन इक्वल टू, देन 50,000 इज ऑल्सो काउंटेड। ठीक है, ये क्या है, ई डी ई पी टी नॉट इक्वल टू सेल्स। तो ओ ई डी ई डी डी ई डी ई पी टी जो कॉलम है, इसमें जहाँ सेल्स वैल्यू नहीं है वो वाले रोज को हमने पिक करना है। ठीक है, then we can also put these and or not, these are logical operators. Whenever and is used, there we have to specify that we have to check whether both the conditions are true. सेमीकोलन एक आएगा, यहाँ दो लिखेंगे गलती से। तो अगर मार्क्स की वैल्यू 90 से ज़्यादा है और जेंडर एफ है, दोनों कॉलम चेक होंगे। जहाँ पे जेंडर में एफ है और मार्क्स की वैल्यू में 90 से ज़्यादा है, वो वाली रोज को हमने कंसिडर करना है, उसके एफ नेम डिस्प्ले होंगे, राइट। और अगर हम लोग एक ही कॉलम के अंदर दो कंडीशंस लगा रहे हैं, जैसे मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 एंड मार्क्स लेस देन 95 इक्वल टू 95, कि मार्क्स जो है 92 से लेके 95 के बीच में होने चाहिए, इसको हम बिटवीन क्लॉज से भी लिख सकते हैं, वेयर मार्क्स बिटवीन 92 एंड 95, ये मार्क्स बिटवीन 92 एंड 95। Important thing to remember, 92 is also counted, 95 is also counted। और यहाँ पे एक और गलती बच्चे क्या करते हैं, एंड दूसरा डाल देते हैं एम्परसेंड साइन, राइट, सिंबल वाला। वो वाला सिंबल वाला एंड नहीं डालना, ये वाला ए एन डी एंड डालना है, बिकॉज लॉजिकल ऑपरेटर्स में ए एन डी है, नॉट सिंबल वाला। सिंबल वाला इज यूज्ड इन जावा, राइट, दैट विल डू लेटर ऑन। सो ये है कि बिटवीन का मतलब 92 से लेके 95 तक सारी वैल्यूज को हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 92 भी आएगा, 95 भी आएगा, 92 और 95 के बीच वाली वैल्यूज भी आएंगी। तो ये सारे मार्क्स कंसिडर किए और हमने ये तीन चीज़ें यहाँ डिस्प्ले कराई हैं, एफ नेम, एल नेम और मार्क्स, राइट। सिमिलरली और विच कंडीशन वेयर आइदर फुटबॉल और हॉकी, गेम कॉलम में या फुटबॉल हो या हॉकी हो, तो इन दोनों वैल्यूज को ही हमने कंसिडर करना है, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। हॉकी वाली वैल्यूज भी हमने पिक कर ली, फुटबॉल वाली भी कर ली, राइट। अगर नॉट लगाया है, नॉट ई सेल लेस देन 50,000, ई सेल में जहाँ वैल्यू 50,000 से कम नहीं है मतलब ज़्यादा है, वो हमने पिक करनी। तो ई सेल की 50,000 से हायर वैल्यू को कंसिडर करेंगे हम, ये 50,000 से ऊपर वाली वैल्यूज को हमने पिक कर लिया। नॉट जोन इज इक्वल टू नॉर्थ, तो जोन नॉर्थ को छोड़ दो, बाकी सारी उठा लो, राइट। और नल वैल्यूज चेक करनी है तो वेयर जोन इज नल, वेयर जोन इक्वल टू नल नहीं, वेयर जोन इज नल। नल हमेशा इज कीवर्ड से एक्सेस होता है, इक्वल टू से नहीं होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, यहाँ पे जो गलती होती है, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक एरिया। तो सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जोन इज नल, जोन में जहाँ नल वैल्यूज हैं, जहाँ पे ब्लैंक है, वो वाले ई नेम्स और जोन्स को हमने प्रिंट कर दिया, राइट। और अगर हम इज नॉट नल लिख दें तो इन नल वैल्यूज को छोड़ के बाकी जो भी जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी रोज हैं, वो वाले डेटाज को हमने, वो वाली एम्प्लॉई नेम्स और जोन को हमने प्रिंट करना है।
नल वैल्यू छोड़ देना है. This is important. Operation equal to null and not equal to nut are not defined. They are not used in SQL, right? So I think I'll end up here. We'll go through the discussions next time also. So एक बार और इसको go through कर लेंगे. इसके बाद कुछ problems हैं तो then we'll cover up that also. So that's all from my side today.